حضرت اسحاق علیہ السلام۔ خانہ کعبہ دنیا میں اللہ کا گھر ہے جو کہ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ اس گھر کو بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اس لیے بیت اللہ کے معنی ہوئے اللہ کا گھر۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا نگران مقررہ کیا اور خود شام واپس چلے گئے۔ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت تک وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپے سے جسم بھی کمزور ہو گیا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس اہم کام یعنی بیت اللہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی تھی۔ یوں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے قریب ہی رہا کرتے تھے، اس لیے بھی ان کو اس مقدس کام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس ذمہ داری کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس ذمہ داری کو بخوبی اور حسین طریقے سے سنبھالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تھا اور دوسری بیوی کا نام سیدہ سارہ علیہ السلام تھا۔ ان کی دونوں بیویاں بھی بوڑھی ہو گئیں، ان کے بال بھی سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن سیدہ سارہ علیہ السلام کو اولاد کی تمنا تھی۔ آپ علیہ السلام کو اولاد کے نہ ہونے کا دکھ تھا۔ جب دونوں میاں بیوی ظاہری اسباب کے سبب اولاد کی طرف سے بالکل نا امید ہو گئے، تب ان دونوں کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ کچھ یوں کہ ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور دروازے پر تین آدمی کو کھڑے پایا۔ یہ تینوں آدمی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ تینوں بالکل جوان تھے، خوبصورت تھے، ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ آنے والے مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، انہیں خوش آمدید کہا اور خوشی کا اظہار کر کے انہیں گھر کے اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر اندر تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں عزت و اکرام سے بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کی کوشش ہوتی تھی کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے۔ اگر کبھی کوئی مہمان کئی عرصے تک نہ آتا تو گھر سے باہر نکل جاتے اور کسی کو تلاش کر کے مہمان بناتے، پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ لیکن اب جب کہ ان کے گھر خود مہمان آئے تھے تو وہ بہت خوش ہوئے، چونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتے ہیں، اس لیے ان کی مہمان نوازی بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے اپنے پاس موجود جانوروں میں سے ایک عمدہ بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا اور ان سے فرمایا، لو کھاؤ، گرم گرم بھونا ہوا گوشت بہت لذیذ اور خوشبودار ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو کسی بھی شخص کی بھوک کو فوراً بھٹکا دیتی تھی، مگر یہ کیا، گرم گرم گوشت اپنے سامنے موجود دسترخوان پر دیکھ کر بھی ان خوبصورت مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا۔ دراصل یہ تینوں جوان مہمان اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے تھے، جو انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، اور فرشتے چونکہ کھاتے پیتے نہیں اس لیے انہوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ جب ان مہمانوں نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے کچھ خوف بھی محسوس کیا کہ نہ جانے کیا بات ہے، یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں مہمان اگر کھانا نہیں کھاتا تھا تو خیال کیا جاتا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کہ مہمان برے ارادے سے گھر میں داخل ہوا ہے اور میزبان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان مہمانوں کو جانتے تک نہیں تھے، بس ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ یوں بھی انبیاء کرام سے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے تاکہ انبیاء کرام سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے سوالات کریں اور ان سوالات کے جواب سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور ایمان لا کر اللہ کے قریب ہو جائیں۔ مگر اب جب اجنبی مہمان کچھ بھی کھانے پینے کی خواہش نہیں رکھتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پریشان ہونا بھی ایک فطرتی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، مجھے تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ اس پر ان نوجوانوں نے جواب دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر فرشتوں نے ان کو بیٹا ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کیا۔ انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور بغیر کسی تاخیر کے بھونا ہوا گوشت لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہوں نے آن جان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرے نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی
हंस दी तो हमने इन फरिश्तों के जरिए उसे इसहाक अलैहिस्सलाम और इसहाक के बाद यकूब अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खुशखबरी सुना दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने ये सुनकर कहा, मेरे यहाँ औलाद कैसे पैदा हो सकती है? मैं खुद बुढ़िया और मेरे खामद भी बहुत बड़ी उम्र के हैं। ये तो यकीनन बहुत बड़े ताज्जुब की चीज है। फरिश्तों ने कहा, क्या तू अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही है? ऐ इस घर के लोगों, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाज़िल हो, वो काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। फरिश्तों ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वाज़िया कर दिया कि वो उनके दुश्मन नहीं है, लिहाजा डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वो कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। कौम लूत अल्लाह ताला की नाफरमान कौम थी और अपने नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान रही थी। वो कौम कबीरा यानी बड़े गुनाहों में मुब्तला थी। यही वजह थी ये फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से कौम लूत को अजाब के जरिए तबाह करने जा रहे थे। अगली वीडियो हमारी हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर होगी तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो मिस ना हो सके। जब फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये बात की तो उनकी बीवी सईदा सारा अलैहिस्सलाम जो के पास ही खड़ी थी वो बेइख्तियार हंस दी। वो क्यों हंसी, इस बारे में मुफस्सरीन के कई अकवाल है। मुफस्सरीन इन उलमा कराम को कहते हैं जो कुरान मजीद का इल्म जानते हैं और कुरान मजीद को लोगों को समझाने के लिए दिन रात मसरूफ रहते हैं। बहरहाल मुफस्सरीन के अकवाल में से दुरुस्त और सही मालूम होता है कि फरिश्तों की ज़बानी कौम लूत के खात्मे की खबर सुनकर सईदा सारा अलैहिस्सलाम बेइख्तियार हंस दी कि अच्छा ही हुआ, अब जमीन पर से बुरे और गुनाहगार लोगों का खात्मा हो जाएगा। मतलब ये कि बुरे लोगों के खात्मे की खबर सुनकर बतौर तशक्कुर उन्हें हंसी आ गई। उनके हंसने के बाद जब फरिश्तों ने सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की वलादत की बिशारत दी, इस बिशारत का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अल-सफ़ात में इस तरह किया है, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम नबी की बिशारत दी जो सालिया यानी नेक लोगों में से हो गए। हमने अपने दोनों बंदे यानी इब्राहिम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकत नाज़िल फरमाई और उन दोनों की औलादों में से कुछ तो नेक बख्त हैं और कुछ तो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं। रिश्तों की ज़बानी मिलने वाली इस बिशारत से सईदा सारा अलैहिस्सलाम ही को हैरत नहीं हुई बल्कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी हैरत जाहिर की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की ये बात सुनकर हैरत और ताज्जुब के मारे उनसे पूछा, तुम मुझे इस बुढ़ापे में औलाद की खुशखबरी दे रहे हो? कुरान करीम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन हैरत भरे अल्फाज को यूं बयान किया गया है, क्या तुम मुझे इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद खुशखबरी देते हो? यह खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? फरिश्तों ने फिर ताकीद के साथ कहा, हमने आपको अल्लाह के हुक्म से सच्ची बशारत यानी खुशखबरी दे दी है, आप अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होने वालों में से ना हो। फरिश्तों की इन बातों से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खौफ बिल्कुल दूर हो गया और आपकी बीवी सईदा सारा अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी से बड़ी मुताज्जुब हुई और अपना हाथ अपनी पेशानी पर मारते हुए कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो बांझ हूँ, जवानी में औलाद ना हुई, अब तो बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, अब कैसे होगी? फरिश्तों ने कहा, हम नहीं जानते ये कैसे होगा, हम तो ये जानते हैं कि चूंकि तुम्हारे परवरदिगार ने ऐसा कहा है लिहाजा ऐसा जरूर होगा। वो अपने काम की हिकमतों को खुद ही खूब जानता है कि वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कैसी कैसी नवाज़शात करना चाहता है। कुरान करीम में इस किस्से को अच्छी तरह बयान किया गया है। गोया सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की वलादत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम इनाम था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा बतौर खास इन अल्फाज में किया है, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और हर एक को हिदायत बख्शी। हमने इस कबीला नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी और उसकी औलाद में से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी। हम नेक लोगों को इस तरह अच्छा बदला देते हैं। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की जब वलादत हुई उस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उम्र 100 साल के करीब हो चुकी थी। इस उम्र में बेटे का होना अल्लाह ताला की तरफ से खास मेहरबानी थी। चुनाचा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इस खुसूसी अनायत पर इन अल्फाज में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाए, बिलाशुबा मेरा रब खूब दुआएं सुनने वाला है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सईदा सारा अलैहिस्सलाम को सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाने के बाद फरिश्ते सदूम बस्ती की तरफ चले गए ताकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल करें, वो अजाब जिसे अल्लाह ताला ने इस कौम के लिए उनकी नाफरमानी और गुनाहों की वजह से लिख दिया था। फिर इस वाक़ये के तकरीबन 1 साल बाद सईदा सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम इसहाक रखा गया। उस वक्त सईदा सारा अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 90 साल थी और उनके खामद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल के करीब थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी साल हुई जिस साल बैतुल्लाह
बैतुल्लाह की तमीर मुकम्मल हुई। जब आप अलैहिस्सलाम 8 साल के हुए तो आपका खतना करवाया गया। यहूदी आप अलैहिस्सलाम को ज़हाक कहते हैं, जबकि कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का नाम इसहाक आया है। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम फलस्तीन में अल-खेल के मुकाम पर पैदा हुए। अपने वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही रहे। कुरान मजीद में आपका इसमें ग्रामी 17 मरतबा जिक्र हुआ है। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम बहुत ही परहेजगार, पारसा, सच बोलने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी कौम की तरफ से नबी बनाकर भेजा था ताकि वो अपने वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से रिसालत का फरीजा सर अंजाम दे, इसको मुकम्मल करें, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाएं, उन्हें तौहीद की दावत दें। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस में कोई सराहत है और ना ही मुस्नद तरीकी किताबों में कोई वजाहत है। अलबत्ता अहले किताब से मनकूल चंद रवायात हैं। अहले किताब इन लोगों को कहते हैं जो तुरात, ज़बूर या अंजील पर इल्म रखती हैं। जिन अंबिया पर किताब नाज़िल हुई, इन अंबिया को अपना रसूल समझते हैं, इनके बाद आने वाले अंबिया कराम को नहीं मानते। तुरात, ज़बूर और अंजील भी कुरान मजीद की तरह की आसमानी किताबें हैं, लेकिन ये किताबें कुरान मजीद नाज़िल होने के बाद किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं रखती। बहरहाल अहले किताब की बयां करदा रवायात को इसराइली रवायात कहा जाता है। इसराइल के मुतल्लक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी है, बनी इसराइल से रवायत बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता तुम उनकी बातों को ना सच्चा कहो ना झूठा, यानी जैसे उनके पैगंबरों के किस्से सुनो वैसे ही इन किस्सों को बयान कर दो, लेकिन उनके सच्चा झूठा होने के बारे में कोई बात ना करो। अहले किताब बयान करते हैं कि सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में रिफक्का नामी औरत से शादी कर ली। आपकी बीवी की उम्र उस वक्त 40 साल थी, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे की बेटी थी। शादी के बाद कुछ अर्सा तक उनके यहाँ औलाद ना हुई तो सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बारगाह में औलाद की दुआ की। इस दुआ के नतीजे में उनके घर 2 जुड़वा लड़के पैदा हो गए। एक का नाम इसू था, अहले किताब उसे इस कहते हैं। रोमियो का जुदाए अमजद यही शख्स है। दूसरे बेटे का नाम सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम था। उनका दूसरा नाम इसराइल है, इसलिए उनकी औलाद बनु इसराइल या बनी इसराइल कहलाती है। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर नबी थे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हीं के बेटे थे। सही बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्जतदार शख्स के पड़पोते, इज्जतदार के पोते, इज्जतदार के बेटे और खुद भी इज्जतदार यूसुफ बिन यकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इस हदीस से सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की अजमत व बुजुर्गी का पता चलता है। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसू और सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम। अहले किताब की तरफ से ये बात कही जाती है कि सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम को इसू से बहुत ज्यादा लगाव और मोहब्बत थी, जबकि उनकी बीवी इसके बरअक्स दूसरे बेटे यानी सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम को ज्यादा प्यार करती और उनके लाड़ लड़ाती थी। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, उनकी नजर कमजोर हो गई, तो एक रोज उन्होंने अपने लाडले बेटे इसू से खाना तैयार करने की ख्वाहिश जाहिर की और उसे हुक्म दिया, इसू बेटा तुम जाओ और जाकर कोई जानवर शिकार करके उसका गोश्त तैयार करो और मुझे खिलाओ। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम ने इसू से यह भी कहा, अगर वो शिकार के जानवर का गोश्त उन्हें खिलाएगा तो वो उसके हक में खैर और बरकत की दुआ करेंगे। इसू एक माहिर और तजुर्बाकार शिकारी था। अपने वालिद ग्रामी की ख्वाहिश सुनकर वो शिकार के लिए निकल गया ताकि वो जानवर का गोश्त अपने वालिद मोहतरम को खिलाए और उनकी दुआ ले। इत्तेफाक की बात ये हुई, सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की ये सारी गुफ्तगू उनकी बीवी ने सुन ली। क्योंकि सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो चाहती थी सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की खैर बरकत की दुआ इसू की बजाय हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के लिए फरमाए। चुनाचा सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपने लाडले और प्यारे बेटे सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम को बुलाकर उनसे कहा, यकूब तुम ऐसा करो, अपनी बकरियों में से 2 उम्दा किस्म के मेमने ज़िबा करके अपने वालिद की पसंद का खाना तैयार करो और अपने भाई यीशु के आने से पहले पहले उन्हें अपने वालिद की खिदमत में पेश करो ताकि वो तुम्हारे हक में दुआ करें। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम के पास एक रेवड़ था। बहरहाल सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने रेवड़ में से 2 उम्दा मेमनों को ज़िबा किया, उन्हें पकाकर वालिद गिरामी सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम ने वो खाना खाया और खुश होकर सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम को ये दुआ दी, यकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों से मुअज़्ज़ज़ हो, वो उनका और बाद में आने वाली कौमों का सरदार हो और उसका रिज़्क़ और औलाद बहुत ज्यादा हो। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम ने नबूवत के बाद अपनी कौम को पूरे खलूस और नेक नीति से तौहीद की दावत दी, इन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया और उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाया। आप अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने के बाद मुसलसल दावत और तबलीग के काम में लगे रहे, यहाँ तक के इस काम को करते हुए आपकी उम्र 180 साल हो गई। फिर आपने वफात
पाई। जिस वक्त आपकी वफात हुई आप अल्लाह से राजी थे, अल्लाह आप से राजी था। वफात के बाद आपके दोनों बेटे यीशु और सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने आपके वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब उस गार में दफन किया जो उन्होंने खरीदी थी। ये गार फलस्तीन के शहर अल खेल में वाक़िया है और उसका नाम मकफीला है। अहले किताब ये भी दावा करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि इसहाक अलैहिस्सलाम को ले गए थे। अहले किताब की यह बात बिल्कुल मन गढ़ंत और झूठी है, क्योंकि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने के लिए ख्वाब में हुक्म मिला तो इस वक्त तक इसहाक अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। इसहाक अलैहिस्सलाम अपने भाई इस्माइल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे। तफसीर इब्ने कसीर कुरान मजीद की तशरीह के हवाले से एक बेहतरीन किताब है। इस किताब में आलमा बिन कसीर ने एक वाक़िया लिखा है। यहूदी उलमा में से एक शख्स हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में मुसलमान हो गया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस मुसलमान होने वाले आलिम से मुलाकात की। बातों बातों में उमर बिन अब्दुल अजीज ने इससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अपने बेटों इस्माइल और इसहाक में से कौन से बेटे को ज़िबा करने का हुक्म हुआ था? इस यहूदी आलिम ने जवाब दिया, जी हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। ऐ अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यहूदी अरब के लोगों से हसद करते हैं। इस हसद की वजह से वो ये झूठ कहते फिरते हैं कि ज़िबा का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में हुआ था, ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था और उनकी औलाद में से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, जबकि बाकी तमाम अंबिया हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुए। अहले किताब के हसद करने की वजह ये थी कि वो शिकवा करते थे कि तमाम नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुए, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनकी औलाद में से होना चाहिए था, ना कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। रवायात में आता है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से 3500 अंबिया कराम पैदा हुए।